Easy and ease was two main parts that we designed the content of today's training after going through a lot of webinars, lot of websites, consulting from some bodies like ILO, some reading materials from CDC, Government of Pakistan, और किस तरह से हम SOP फॉर्म करें ताकि हमारा वर्क प्लेस और स्पेशली हम लोग सेफ रहें. So let's begin the training. On whatever questions do you have, आप please Q&A में वो type करते रहें. During the topic, I'll stop by. I'll take questions from you, or I'll try कि I answer then and there, if not possible towards the end. ठीक है? So let's begin. So about my introduction, as you all know, my name is Farheen Zahoor. I am heading a company called Canva Sourcing. I'm working there as a managing director. Besides being a managing director, I am a consultant and trainer. I've done my engineering from NED and also my executive MBA from Institute of Business Management. And over the period of time, over these 15 years, I have been working with lots of companies, and they are Tom Taylor, Target, Citizens. I'm a board member of a company called Bertron, which is an EPC contracting company. It's from electrical. Mary engineering textiles mein, so my specialization is in textiles, but there are different businesses that I support. And then finally, Canva sourcing. So other than doing sourcing, I do a lot of projects that support businesses. For example, I support few foreign brands to establish gender equality, SOPs, and create awareness about these topics, and also how to begin sustainability in your factory. Those who think that sustainability is it's a difficult topic, so we help those people to initiate and create stories in sustainability. Coming towards the main topic, which is the methodology. ऐसा हमें क्या करना है अपने वर्क प्लेस पे कि हम एक अच्छा SOP बना लें. So after reading all the materials and everything, we concluded that हम एक वायर फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसके अंदर हमारे पास components हों, which we call wire, where W stand for who is your enemy, which is identification of your enemy. I stands for infectious disease management. R stands for response to emergency, and E stands for education and support. ये वो 4 steps हैं जिन्हें अगर आप समझ लें और इनके गिर्द अगर आप अपने SOPs बनाएं इन guidelines के through, you will definitely benefit your workplace, yourself, and the outcomes you will get would be your workplace well-being would be enhanced, the absenteeism will be reduced, business continuity will be ensured, there will be minimum chances of virus relapse, there will be better efficiency, and of course जब आपके पास business होगा, आपके SOPs implement होंगे, absenteeism नहीं होगा तो layover भी नहीं होगा, customer order place करता रहेगा और आप सबकी jobs intact रहेंगी. So it's not only for the workplace and the workers, it's for ourselves as well. It benefits us. So during the training, we will understand and learn कि ये जो WIRE इस वक्त घूम रहा है यहाँ वहाँ, इसको हम कैसे connect करें, इंटैक्ट करें और एक अच्छा फ्रेमवर्क और ऐसे SOP बनाएं जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो. So the first step, who is your enemy? So as everybody know that our enemy is COVID. So in the chat box, please reply, do you feel that our enemy is COVID? Say yes or no. Take a minute और chat box में मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि हमारी enemy COVID है? या do you think there is someone else? Or do you feel, oh, so we have somebody say, most of the people say yes, but some people are saying no as well. So for those who are saying no, may I know कि अगर कोविड नहीं है तो फिर हमारी एनिमी कौन है? Would you like to reply in the chat box?
Great. So we're receiving very interesting answers. Somebody's saying our enemy is safety measures. Some are saying that COVID creates many opportunities for us. Our enemy is laziness. Very true. And let's see how I concluded it. Besides COVID, our biggest enemy is ourselves. It's you. So let's see if besides COVID, are we the enemy or is the COVID who's enemy? And how are we contributing in the spread of COVID? So a little quick recap of what COVID is. We all know and we're completely aware कि COVID के symptoms क्या हैं. लेकिन 5 महीने की learning के बाद जो चीज़ें हमने समझी हैं वो ये कि it's cough, shortness of breath, fevers हैं, chills हैं, vomiting है, muscle body ache है, loss of taste and smell है. Very common symptoms जो कि 2 हफ्ते के अंदर लोगों को नजर आते हैं and then they test positive for COVID. So in case if these symptoms got severe, you need to seek immediate medical emergency. और उसके और अगर ये इनके अलावा अगर आपको कोई सिवियर सिम्टम्स होते हैं जैसे आपको सांस लेने में मसला हो रहा है, you feel persistent pain in your chest, there's confusion, inability to wake or stay awake, and you have bluish lips or face due to lack of oxygen, you need to immediately seek medical assistance and check yourself for COVID. And during the period of time, we have also observed that there are some quick facts on COVID, which are there's no vaccine, license, drug, treatment available as of date. Pneumonia vaccine COVID पे काम नहीं करता है, एंटीबायोटिक्स कोविड पे काम नहीं करती हैं, ठीक है. और ये गर्म हॉट और ह्यूमिड एरियाज में भी ट्रांसमिट हो सकता है, कोल्ड एरियाज में भी ट्रांसमिट हो सकता है, और एक्सपोजर टू सन और टेम्परेचर अबव देन 250 डज नॉट prevent the disease. It may help in uh, reducing the amount of virus, but there is no fact or study supporting this claim. Therefore, ये ना सोचेंगे गर्मी आ गई है तो कोविड के वायरस को बहुत मर जाएंगे. और ये मॉस्किटोज या फ्लाइज से ट्रांसमिट होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. उनसे मॉस्किटो से आपको डेंगू हो सकता है लेकिन कोविड नहीं. And all age group, regardless of their health and whatever, they can be affected. So yes, definitely COVID is our enemy. But what we have seen over the period of time is the enemy can be us as well. It can be you. How? It's our mindset. It's our belief. It's our behavior. जब हम ये assume कर लेते हैं कि ओ भाई कोविड नहीं हो सकता, हमारे नंबर्स जो है वो केसेस के डिक्लाइन हो रहे हैं, तो या तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये पहला माइंडसेट था. और दूसरा माइंडसेट था कि अब ये जा चुका है, लिहाजा अब हम फ्रीली घूम फिर सकते हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग को अवॉइड कर सकते हैं. एंड द वायरस इज गॉन. रॉन्ग. द वायरस इज स्टिल हियर. वी स्टॉप फॉलोइंग एसओपीज. हम वर्क प्लेस पे बातें कर रहे होते हैं, गैदरिंग्स कर रहे होते हैं. वी हैव स्टॉप्ड सैनिटाइजिंग आवर हैंड, वी स्टॉप वॉशिंग आवर हैंड्स. we're not taking care of our personal hygiene. हम छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, हमने मास्क पहनना बंद कर दिया है और हमने टिश्यू यूज करना बंद कर दिया है. we are publicly sneezing, which is again very wrong. And we are ignoring of social distancing. कहीं लाइन में लगे हैं तो हम बहुत क्लोज खड़े हो रहे हैं, लोग जमा हो रहे हैं, हम लोग को रोक नहीं रहे और अपने आप को भी नहीं रोक रहे. So for your information, the news is on 28th of July, BBC reported that some countries are already experiencing second wave. And it's not a perception, it's not a view or an opinion, they are facts to this claim. और जो facts हैं, they're published on BBC and they're saying कि वो countries जिनके अंदर कोरोना in the mid of July वो खत्म हो गया था, वहाँ अब second wave आ गई है. As you can clearly see that Spain, which was on decline, the number of cases were less. After 15 July till 28 July, the number of cases are rising very fast in Spain. However, an increasing trend is also observed in France and in Germany as well. Therefore, it's not safe to assume that COVID has gone just because the cases are not being reported or we're not having enough cases during these days in Pakistan.
तो ये बिल्कुल अपने जहन से सब निकाल दें कि ये जा चुका है और अब हम फ्रीली जी सकते हैं. कोविड इज गोइंग टू स्टे हियर. ठीक है. सो द ओनली वे, सो प्लीज डू नॉट अपने माइंड से ये सारी चीजें आप निकाल दें कि ये जा चुका है और एग्जिस्ट नहीं करता. रिमूव ऑल दीज ऑप्शंस. And I'm also presenting some Pakistan stats जो बताएगा आपको कि पाकिस्तान इस वक्त कितना रिस्क फ्री है, कि पाकिस्तान में कितना इस वक्त रिस्क एग्जिस्ट करता है, इवन इफ के जो हमारे नंबर ऑफ रिपोर्टिंग इस वक्त हो रही है वो बहुत कम है, या नंबर ऑफ केसेस जो हमारे आइडेंटिफाई हो रहे हैं उनमें एक सिवियर डिक्लाइन है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन. सो जो पाकिस्तान स्टैट्स हैं वो ये क्या कहते हैं. सो अकॉर्डिंग टू ये एक पेंडेमिक सिवियरिटी सर्वे है कि हमारे पास जो पेंडेमिक आया था वो किस नेचर का था. तो ये कैटेगरी 1 का था, 2 का था, 3 का था, 4 का था या 5 का था. सो सबसे ज़्यादा सिवियरिटी जिस चीज़ की है वो है कैटेगरी 5. सो लेट्स सी ड्यूरिंग दिस टाइम पाकिस्तान जो है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा था. So, what do you think? What is the case fatality ratio in Pakistan? So, I'm opening up my chat box and I want you to answer me. आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है in terms of pandemic severity. So, 30 seconds to this question. Okay, category 2. ठीक है. More answers. We're looking for more answers. Category 1. Okay. So for those who are still thinking, category 1 is the less severe and category 5 is the most severe. Okay. Okay. Great. So we're receiving a couple of answers. Some says 4, some says some says 2. So they're mixed answers. So let me break this surprise for you. So as per our stats, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त वेबसाइट पे अपडेट कर रही है, the confirmed cases so far is 200k plus. In last 24 hours there were 73 cases reported as of today, and the death so far are 6,000 plus, which gives a fatality ratio of 2.1%. अब अगर 2.1% को मैं यहाँ पे पेंडेमिक सिवेरिटी इंडेक्स से कंपेयर करूँ, so it's category 5, which is above 2%. So at this point of time, पाकिस्तान के अंदर जो पेंडेमिक की सिवेरिटी थी वो 2% से ज़्यादा थी. It was category 5. It was high risk. तो फिर ये अज्यूम करना कि कोविड चला गया है या हमारे केसेस रिड्यूस हो रहे हैं और हम फ्रीली जी सकते हैं, ये इट्स इग्नोरेंस. It's not true. We are not facing the reality. So whoever is thinking कि पाकिस्तान जो है वो लोग पाकिस्तान में सिवेरिटी ख़त्म हो गई है या नहीं थी, अल्लाह करे ऐसा टाइम आए, but at this point in time we are still in category 5, which is highest severity with highest fatality ratio. ठीक है. And if we look at this data, which is posted by government of Pakistan and which clearly explains on a daily basis कि cases हमारे क्या हो रहे हैं या किस तरह से हमारे cases increase या decrease हो रहे हैं. So immediately after Bakrid, which is August 4 and 6, we see an increase in the number of cases reported in 24 hours, right? You can see the bar is increasing. And since last 2 days, which is August 11 and August 12, the number of cases have not declined. They are consistently managing a number of 700 plus. Therefore, please communicate. First, convince yourself and then communicate. The virus has not gone. The severity and seriousness is still there. And opening up business does not mean that virus is gone. The business is opening to support people and the money market, but you still have to take care of yourself. Okay? So the enemy is COVID and the enemy is you if you don't take steps to protect yourself, your workplace, your family and your neighborhood. So the question arises, how can we protect our workplace and हम किस तरह से ये relapse को avoid करें?
So there is no rocket science to it. It's prevention. We have to avoid. We simply have to avoid. We don't need to let this happen. We don't have to let the virus come to us. So we have to prevent. We have to take preventive measures through implementation and monitoring of SOPs. And trust me, it's not a rocket science. These are very simple steps related to common sense. इसके लिए आपको डिग्रीज की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत सारे वेबसाइट पे बहुत सारा कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. Mostly is related to common sense, little bit of knowledge, which is already I think everyone has. And then we need to create SOP. We have to important part is we have to implement them. We have to monitor them. एक दफा SOP बना के उसको implement करें, audit करें टाइमली बेसिस पे कि वो फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं. जो लोग आपको लगता है कि अभी भी किसी ओल्ड स्कूल थॉट में या ओल्ड माइंडसेट में हैं, उनकी ट्रेनिंग करें, उनकी कोचिंग करें और उनको बताएं कि ये they need to change their attitude and behavior towards this virus for the protection of the workplace. और इसके क्या उनको फायदे नुकसान होंगे. So the second step in the WIRE framework is you have to develop an infectious disease management system. ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी बेस पे आपका ये गाइडलाइंस हैं जो मैं आपको आज दूंगी, जिसकी बेस पे आप एक अच्छा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जिसमें नॉट स्पेशली कोविड की मैनेजमेंट, इसके प्रिवेंटिव एक्शंस, इनके क्लीनिंग प्रोटोकॉल्स जो भी होंगे वो आप मतलब अडॉप्ट करके एक अच्छा सिस्टम बना सकते हैं. So the first thing is you need to develop an infectious disease preparedness and response plan. The first thing is plan. You always plan. So you need to develop a plan that can help guide, protect actions against COVID. इस प्लान के अंदर, इस प्लान को बनाने के लिए the first step you need to take is to understand the local and international guidelines. अगर आप कोई कस्टमर्स हैं जिन्होंने आपको गाइडलाइंस भेजी हुई है, आप उनको स्टडी करें. आप लोकल गवर्नमेंट बॉडीज की गाइडलाइंस को स्टडी करें. अगर कोई इंटरनेशनल बॉडी है जैसे CDC है, बहुत कॉमनली उन्होंने बहुत सारी गाइडलाइंस दी हुई हैं, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देम. और इन्हीं से कुछ गाइडलाइंस हमने लेके जो कि एप्लीकेबल हैं, ईजी हैं, वो अपनी इस ट्रेनिंग में डाली है, so which you can use and utilize and create an SOP. In order to develop a plan, the second step is you have to identify the high risk and low risk areas. हमारी फैक्ट्री में हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हाई रिस्क एरियाज कौन से और लो रिस्क एरियाज कौन से हैं. थ्रू कॉमन सेंस वी ऑल नो जहाँ ज़्यादा लोग होंगे, जहाँ ज़्यादा लोगों का गुजर होगा या लोग ज़्यादा खड़े हुए काम होंगे, वो हमारे हाई रिस्क एरिया होंगे. और जहाँ पे पीपल डेंसिटी कम होगी वो हमारे लो रिस्क एरिया होंगे. So those are our work site, job tasks, our entrance और exit places हैं. हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, अगर वो उनमें डेंसिटी लोगों की ज़्यादा है या उनका एरिया कम है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो वो भी हमारे हाई रिस्क एरिया होंगे. फिर हमें आइडेंटिफिकेशन करनी कि हमारे हाई रिस्क वर्कर कौन से होंगे. सो हमारे ऐसे वर्कर्स जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है या जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है या कोई क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, फॉर एग्जांपल खांसी है, नज़ला है, या जनरली देखा गया है उनके कुलीग से फिर आपको पता लगा कि वो जनरली बीमार रहते हैं, या क्योंकि अब फीमेल वर्क फोर्स भी है आपकी फैक्ट्रीज में, तो किसी को प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी वैसी लो होती है एंड यू आर मोर लाइकली टू गेट द वायरस. ठीक है. इसके अलावा अगर आपकी फैक्ट्री में कोई खांसता छींकता हुआ आ रहा है या स्नीजिंग हो रही है या somebody is weak, और या वो आपके फीवर टेस्ट को जो आप एंट्रेंस और एग्जिट पे लगा रहे हैं उसको पास नहीं कर रहा, so that also comes under high risk workers. The second thing and the third thing in plan is you have to add controls to address these risks. ठीक है. अब हम controls कैसे लगाएंगे, so ये हम डिस्कस करते हैं. उससे पहले you also have to, a very important part of the plan is contingency plan. You have to develop a contingency plan. आज की डेट में जब कोविड के केसेस कम हैं, स्प्रेड कम है और सब चीज़ें इन कंट्रोल हैं, मे बी वी डोंट थिंक कि अगर ये दोबारा आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा. लेकिन जब हम प्लान बना रहे हैं तो हमें एक प्रोविजन, एक कंटिजेंसी प्लानिंग को भी देना पड़ेगा कि डिस्पाइट टेकिंग ऑल द प्रिवेंटिव मेजर्स, हमने हर चीज़ ठीक की है लेकिन फिर भी किसी की इग्नोरेंस से या कोई बाहर से ट्रैवलर आया या किसी भी रीज़न की वजह से स्प्रेड दोबारा हो जाता है, कोविड दोबारा आ सकता है, तो हमारे पास कंटिजेंसी प्लान क्या होगा. सो बेस्ड ऑन सम इंडस्ट्री इनसाइट्स और जो प्रैक्टिसेस, जो चैलेंजेस लोगों ने फेस किए हैं इन 5-6 महीनों में,
तो उनको देखते हुए पॉसिबल सिचुएशन यहाँ मैंने जो है वो लिस्ट डाउन की है, जिनमें से कुछ ऐसी हो सकती हैं कि देयर इज इंक्रीज रेट ऑफ वर्कर एब्सेंटिज्म। जब कोविड बढ़ रहा था तो डिपार्टमेंट्स रन हो रहे थे, फैक्ट्रीज खुल रही थी, बट लोग बहुत एब्सेंट हो रहे थे, जिसकी वजह से शिपमेंट्स अफेक्ट हो रही थी, कस्टमर्स को टाइम पे डिलीवरी नहीं मिल रही थी, जॉब्स पूरी नहीं हो रही थी, टास्क इनकम्प्लीट थे, और हर सब चीज़ें खुले होने के बावजूद भी जो एंड रिजल्ट होता है वो नहीं मीट हो रहा था। So, इसके लिए व्हाट पॉसिबल सॉल्यूशंस यू कैन थिंक इज आप क्रॉस ट्रेनिंग करें वर्कर्स की, ठीक है, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स कर सकें और आप वर्कर्स को जो है वो स्वैप कर सकें बिटवीन डिपार्टमेंट्स, ठीक है। और जब आपको लगे कि एब्सेंटिज्म बढ़ रहा है, सो यू शुड ऑलवेज हैव दिस माइंड, आप वो टास्क आइडेंटिफाई करें, उन लोगों को आइडेंटिफाई करें और वर्कर्स की ट्रेनिंग करें, ताकि आपके जो क्रिटिकल ऑपरेशंस हैं किसी भी सूरत में वो बंद ना हो। The second is the need for social distancing and staggered workshop. जब आप सोशल डिस्टेंसिंग लगेंगे, आपके फ्लोर प्लान पे स्पेस ज़्यादा खाली होगी, लोग दूर दूर खड़े होंगे, प्रोडक्टिविटी डाउन होगी, आपकी जो है वो कभी वर्कशीट्स हो रही होंगी, कभी नहीं हो रही होंगी। अगर पेंडेमिक फैलता है तो उस केस में आपका क्या कंटीजेंसी प्लान होगा? There can be unlimited solutions. Few which I think you can apply are break down teams in small manageable units only for control purpose. अगर आपकी फैक्ट्री में 1500 एम्प्लॉइज हैं या 1500 वर्कर्स हैं और उनमें से आपको देखना चाहिए कि कौन सी जगह, कौन से फ्लोर पे उनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, वहाँ चांसेस ज़्यादा होंगे, और आप उनको किस तरह ब्रेक डाउन कर सकते हैं इन स्मॉल मैनेजेबल यूनिट्स। एक स्टिचिंग लाइन के ऊपर आप किस तरह सुपरवाइजर को गाइड कर सकते हैं, किस तरह उनके कंट्रोल्स को डेलीगेट कर सकते हैं और स्मॉल यूनिट में उन्हें मैनेज कर सकते हैं। जितना ये डिटेल में मैनेज होगा, जितना ये लोअर जो है वो वर्कर्स पे, और जितना ज़्यादा इसकी स्मॉल स्मॉल यूनिट्स बनेंगे, मैनेजेबल यूनिट्स बनेंगे, उतना अच्छा ये मैनेज होगा, उतना अच्छा ये इम्प्लीमेंट होगा और कंट्रोल होगा। अगर आप मतलब साइन बोर्ड्स लगा देंगे और that's another strategy to control, but अगर आपको effective results चाहिए and you want your plan really to work, you have to divide the control. फ्लोर प्लान चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी मैनेज करने के तरीके को चेंज करना है और स्मॉल स्मॉल यूनिट्स बना देना है लोगों को कंट्रोल करने के लिए। The third possible situation for contingency can be interrupted supply chain or delayed deliveries. माल बन गया है, पैक हो गया है, पैकेजिंग नहीं आई है, पैक नहीं हो सकता, डंप हुआ हुआ है, कोई डाई नहीं आ रही है, बाहर से केमिकल इंपोर्ट नहीं हो सकता है, और एट द एंड ऑफ द डे एंड रिजल्ट मीट नहीं हो रहा, शिपमेंट नहीं जा रही है। तो उसके लिए आप जो कर सकते हैं वो ये कि आप सर्टेन आइटम्स जो आपको लगता है हाई रिस्क है या उनका लीड टाइम ज़्यादा, आप उन्हें स्टॉक कर लें, पहले से थोड़ा प्रोक्योर कर लें, ठीक है, या आप जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री को या अपने सप्लायर्स को इतना एजुकेट करें, गाइड करें कि वो जस्ट इन टाइम जो है वो प्रोक्योरमेंट को अप्लाई करें, और जब आपको चाहिए हो तो वो अवेलेबल हो, या वो क्लोज आपकी फैक्ट्री की विसिनिटी में हो, क्लोज बाय हो, जिस जहाँ से आपको लेना आसान हो। So you also need to educate your suppliers, और आप एक मैकेनिज्म बना सकते हैं, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके एंड रिजल्ट को मीट करने में रोकेंगी। So the next is prepare essential supplies. So you need to make sure at every given point of time आपकी फैक्ट्री में ये supplies मौजूद हों. For example, surgical mask, if possible at least one for a worker per day. At least 15 days consumption in stock. Although it's not ideal कि कोई 8 घंटे की शिफ्ट में 8 घंटे मास्क लगा के बैठे, लेकिन जब आपने प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग की हुई होगी, आपस में एक डिसेंट डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ होगा, सो मे बी वर्कर्स को मास्क पूरा दिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन since they're entering into your facility, it's your responsibility to provide them one mask per day for work. ठीक है, you need to make sure that soaps and alcohol based sanitizer are available, ठीक है, हर जगह वॉशिंग हैंड इज सफिशिएंट टू कंट्रोल द वायरस, लेकिन हर जगह हम वॉश बेसिन इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो जहां हम वॉश बेसिन इंस्टॉल नहीं कर सकते वहां हमें सैनिटाइजर्स जो है वो इंस्टॉल करने हैं, और लोगों को इनकरेज करना है कि वो सैनिटाइजर यूज करें, स्पेशली फैक्ट्री गेट के ऊपर, टॉयलेट्स के एंट्रेंस पे, एग्जिट पे, डाइनिंग रूम्स में, किचन में, ये सारे हाई रिस्क एरियाज हैं जहाँ पे लोगों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ अगर वो सैनिटाइजर यूज़ करें या हैंड वॉश करें तो इट विल बी गुड टू कंट्रोल।
the spread of virus. So the next is tissues. Tissue consumption may be 2 times more than usual or with proper disposal. Tissues आप you can make them available. You can find you can make an SOP के जिसको ज़रूरत हो वो टिश्यू ले और प्लस टिश्यू लेने के साथ प्रॉपर उसकी एक डिस्पोज ऑफ करने के लिए बकेट्स रखें, बिन रखें और लोगों को एजुकेट करें कि वो टिश्यू यूज़ करने के बाद उन्हें डालें और उनको एक्सेसिबल रखें. अगर सोइंग लाइन के अंदर लोग बैठे हुए हैं तो जाहिर है वो अपनी जॉब छोड़ के दो ब्लॉक्स वॉक करके तो डिस्पोज नहीं करेंगे. तो यू नीड टू मेक अ सिस्टम कि वहाँ पे बिन्स रखी हुई हों या थोड़े डिस्टेंस पे बिन रखी हों या कॉमन बिन्स हो जहाँ पे टिश्यू डिस्पोज कर सकें. देन यू कैन यूज़ डिसइंफेक्टेंट्स. ठीक है, डिसइंफेक्टेंट शुड बी डाइल्यूटेड पर इट्स इंस्ट्रक्शन जो उन पे दी हुई होंगी. यू नीड टू हैव थर्मोमीटर एटलीस्ट ऑन एवरी एंट्रेंस और एंट्रेंस पॉइंट. चाहे वो अगर आपका मेन गेट है वहाँ पे टेम्परेचर चेक हुआ है विच इज़ वेरी गुड. और अगर आपको लगता है कि आपको कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपने कंट्रोल इस्टेब्लिश करना है उसकी एंट्रेंस पे तो आप वहाँ पे भी थर्मोमीटर का चेक रख सकते हैं. लेकिन ये भी आप ज़रूर देखिएगा कि आप वहाँ पे यूजुअली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के अंदर टेम्परेचर काम के नेचर की वजह से ज़्यादा होता है. तो ऐसा ना हो लोगों का बॉडी टेम्परेचर ऑलरेडी गर्मी की वजह से बढ़ा हुआ हो और आप थर्मोमीटर से चेक करें और आप आधी वर्क फोर्स को जो है वो ये कह के हटा दें कि देयर हाई टेम्परेचर एंड दे कैन नॉट वर्क टुडे. और स्पेशली N95 मास्क, प्रोटेक्टिव गॉगल्स और फेस शील्ड्स एंड आइसोलेशन गाउन्स ये स्टैंडर्ड PPPs हैं जो कि उन लोगों के लिए आपने प्रोवाइड करनी है जो डायरेक्टली कोविड पेशेंट्स से इंटरेक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोविड पॉजिटिव आ गया है तो ड्राइवर जो उसको लेके जा रहा होगा, सिक्योरिटी गार्ड उन लोगों को सेपरेट कर रहा होगा, या फॉर एग्जांपल आपकी कोविड रिस्पॉन्स टीम जो इस तरह की किसी भी सिचुएशन में वर्कर्स के पास जाएगी जो पॉजिटिव हैं कोविड के या उनके सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं जो जिससे लगता है कि उनको कोविड हो सकता है. सो दे नीड टू वेयर दीज प्रोटेक्टिव kits. So make sure you should have all these with you. So the next is implementation of infectious disease management system. अच्छा, अब तक किसी को कोई क्वेश्चन है डेवलप प्लान की डेवलपमेंट पे? If there's any question, please drop in the chat and I'll try to help answer. Okay, so I think there is no question, so I'll move forward. अच्छा, स्लाइड ये पूरी प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी. We'll provide some additional resources. ये प्रेजेंटेशन भी शेयर होगी और फर्दर आपको चीज़ें भी आगे मिल जाएंगी which you can use to develop the system. ठीक है. अच्छा, जो गाइडलाइंस है टीचर्स के लिए और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए दे आर समवॉट सेम क्योंकि क्लासेस में भी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी स्टूडेंट्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है. सो जब वो SOP इम्प्लीमेंट करें या डेवलप करें तो वो अपने आप को इन गाइडलाइंस, ये सारी गाइडलाइंस उन पे भी अप्लाई होगी. ठीक है, विद सम डिफरेंस, तो वो इनको अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, आई एम कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट सिस्टम. For most of the employers, protecting worker depend on emphasizing basic infection prevention measures. ठीक है, अब यहाँ पे हम इस वक्त बात कर रहे हैं प्रिवेंशन, क्या कोविड हो ही ना किसी को. ठीक है, और as appropriate, all employers should implement good hygiene and infection control practices. ठीक है, so there are 3 main pillars of implementation of this system. जो भी आपने डेवलप किया है सिस्टम, उसके लिए 3 मेन पिलर्स होंगे. So the first pillar is you should have a comprehensive cleaning program. फैक्ट्रीज खुल गई, हफ्ते में एक दफ़ा क्लीनिंग हो गई, हफ्ते में एक दफ़ा करनी है, महीने में एक दफ़ा करनी है या करनी ही नहीं है. ठीक है, तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लीनिंग प्रोग्राम डिफाइन करना पड़ेगा which I'll explain in my coming slides. You have to develop a prevention, you have to develop a mechanism for the prevention of infectious disease outbreak.
कोविड के आउटब्रेक को प्रिवेंट कैसे करना होगा, एज आई एम कॉन्स्टेंटली सेइंग. एंड थर्ड पार्ट इज यू हैव टू इंश्योर वर्कर एजुकेशन एंड सपोर्ट. लोगों को आपने एजुकेट कैसे करना है, खाली वर्कर नहीं, लाइक ऑल योर एम्प्लॉइज, और आप उन्हें कैसे सपोर्ट एक्सटेंड कर सकते हैं. So comprehensive cleaning program, which is also called CCP. All facilities should implement a CCP, which should include at minimum, कम से कम आपके प्लान में ये चीजें होनी चाहिए. और क्या है ये चीजें? इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल प्लान, किस तरह से आपने कंट्रोल करना है, स्प्रे करना है, लोगों को चेक करना है. देयर आर डिफरेंट टूल्स अवेलेबल. यू हैव टू यूज सर्टिफाइड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, क्योंकि कोविड एक क्राइसिस है, क्राइसिस द लैंड ऑफ क्राइसिस द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो बहुत सारे लोग अपनी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स लेकर आ गए हैं जो जिनमें मे बी अल्कोहल की परसेंटेज ठीक नहीं है, जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, या जो प्रॉपरली क्लीन या डिसइंफेक्ट सरफेसेस को और लोगों को नहीं कर रहे हैं. So make sure at your workplace you're using certified cleaning products. ठीक है? You have to use registered disinfectants and sanitizers. The guidelines are available on Government of Pakistan website. They're available on CDC website. बहुत सारी जगहें जहाँ से आपको registered और authentic disinfectants और sanitizers मिल जाएंगे. आपके बेस्ट प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर टुवर्ड्स द कॉम्प्रिहेंसिव क्लीनिंग प्रोग्राम डिफाइन होने चाहिए. किस डे कितनी कैडेंस होनी चाहिए इस प्रोग्राम को रन करने के लिए. सैटरडे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्क वीक क्या आपने डिसइंफेक्ट करना है, ये मंडे मॉर्निंग एम्प्लॉइज के वर्कर्स के आने से पहले आपने अपनी फैसिलिटी को डिसइंफेक्ट करना है, या संडे वाले दिन आपने जब कोई भी नहीं होता तो आपने थोरली इस प्रोग्राम को चलाना है, या ड्यूरिंग प्रोडक्शन आपने इससे कोई स्मॉल स्टेप्स रखे हुए हैं जो आप समझते हैं कि क्रिटिकल हैं और उनको ऑन डेली बेसिस या हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपने उनको परफॉर्म करना है. यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस एंड डॉक्यूमेंट इट. ठीक है, ताकि आप उससे प्रैक्टिस कर सकें. यू हैव टू करेक्ट योर क्लीनिंग इक्विपमेंट, उसको चेक करें, क्लीन करें और मेक श्योर इट्स रनिंग इन अ प्रॉपर कंडीशन. यू हैव टू हैव एन इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम. जो लोग ये काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए. जो एरियाज हैं कंसिडर्ड हाई एरियाज कंसिडर्ड हाई रिस्क एंड हाई टच पॉइंट्स, उनके ऊपर जो है वो क्लीनिंग आपने मैंडेटरी रखनी है. मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगी कि हाई रिस्क और हाई टच एरियाज क्या क्या हैं. ठीक है, जहाँ पे आपका क्लीनिंग जो है वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए. फिर प्रोसीजर्स फॉर क्लीनिंग हाई रिस्क एरियाज. यू नीड टू एजुकेट पीपल कि वो क्या तरीक़ाकार होगा हाई रिस्क एरियाज को क्लीन करने का, क्या उनकी कैडेंस होगी, एंड हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज द सॉलिड वेस्ट. और ये वेस्ट जो है उसको आपने कैसे मैनेज करना है, कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, क्योंकि वायरस आपके वेस्ट में भी होंगे. गॉड फॉरबिड किसी टिश्यू में खांसा है और उसमें वायरस है. So you need to be very careful in implementing the waste management system. So in next slide, I'm explaining, further explaining cleaning, sanitizing and disinfecting. Comprehensive cleaning program के 3 major steps हैं, which is cleaning, जिसका plan अभी हमने discuss किया. Sanitizing, अपने आप को you have to decrease the number of germs on clean surface, and then you have to disinfect and kill the germs. ठीक है, जो कि इस वायरस को लेके आगे जाएंगे. Please note, it is not recommended to disinfect on a daily basis any surface, even the high risk surface, because it does not only kill the bad bacteria, sometimes it kills the good bacteria as well. So the disinfectant surface will remain so until the next person touches that surface. But having said that, there should be a constant or a cadence to disinfect your surfaces. And in cleaning is simply क्या है, आपने germs को surface पे से remove करना है, आपने dust हटानी है, visible debris हटाना है, food particles हटाने हैं, ऐसी चीज़ जो कि सड़ सकती है, बदबू आ सकती है, पानी कहीं खड़ा हुआ है या सही से पानी की जो आपकी मशीन्स लगी होती हैं उनमें पानी सही से ड्रेन नहीं हो रहा है, इस तरह की चीज़ें. सो यू नीड टू मेक इंश्योर प्रॉपर क्लीनिंग. ठीक है. Sanitizing is you use some alcohol based sanitizer to decrease the amount of germs on the surfaces. ठीक है. It reduces the microbiological contamination to level conform to local health regulation. ठीक है. और sanitizers kill most bacteria, even they kill the good bacteria as well. So the next is what are the high risks?
हाई रिस्क क्लीनिंग प्रोग्राम में क्या है जिनको आपने ज़रूर अपने प्लान में शामिल करना है. So they are high risk areas, and which is your restroom, locker rooms, training rooms, and meeting rooms, kitchen and coffee rooms, water fountains and refill stations, conference room आ गया है आपका, and workplace health unit. ये हाई रिस्क एरिया है क्योंकि यहाँ पे एक लिमिटेड टाइम में बहुत सारे लोग आते हैं और जाते हैं, चाहे आपके रेस्ट रूम्स हों, चाहे आपके किचन हों, या पानी पीने के लिए लोग आ रहे हैं. So these are your high risk area, and you need to definitely implement a cleaning program on these places. ठीक है, and we will definitely cover some examples where we will give you some examples and some ideas कि लोगों ने किस तरह से इनको areas को restrict किया है या यहाँ पे लोगों की density कम की है. ठीक है, and then we have high touch points. एक तो एरियाज होगा और एक हाई टच पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल डोर हैंडल्स. डिपार्टमेंट में 100 लोगों ने आना है तो वो दरवाजे को पुश करके आएंगे. 100 लोगों ने डोर हैंडल को टच किया, दैट इज अ हाई टच पॉइंट. आपकी डोर की पुश प्लेट्स हो गई, योर फैक्स एंड कॉपी मशीन्स, बटन्स, टेलीफोन्स, योर मोबाइल फोन्स. ठीक है, योर कंप्यूटर कीबोर्ड एंड माउस, योर हैंड रेल्स. अगर बहुत सारे वर्कर्स आपके एक ही कैंची यूज कर रहे हैं तो वो भी एक हाई टच पॉइंट हो जाएगी. ठीक है, या बहुत सारे जो आपके वर्किंग गैजेट्स हैं वो यूज कर रहे हैं तो वो भी हाई टच हो जाएंगे. आपकी हैंड रेल्स होगी, आपकी एलिवेटर पुश बटन्स हो गए, लाइट स्विचेस हो गए, जो एंट्रेंस डोर्स होते हैं समटाइम्स उनके ऊपर हैंड रेल, उसके ऊपर रेल्स लगी हुई होती हैं, वो हाई टच होती हैं. रिमोट कंट्रोल्स, लाइट स्विचेस. ठीक है, ये सब हाई टच पॉइंट्स हैं. तो जब आप क्लीनिंग रन करें तो आप लोगों को एजुकेट करें कि उन्होंने इन चीज़ों को तो ज़रूर ही क्लीन करना है और एक सैनिटाइज भी करना और डिसइंफेक्ट भी करना. ठीक है, और कुछ और अगर आप कोशिश करें तो आप इन पॉइंट्स को एलिमिनेट करते हैं. जैसे बहुत सारे लोगों ने जो है वो थंब अटेंडेंस सिस्टम के बजाय फेस स्कैनिंग सिस्टम ले दिया है, कार्ड सिस्टम यूज कर लिए हैं. ठीक है, एंड सम डिसइंफेक्टेंट हाई टच सरफेसेस एग्जांपल जो है वो यहाँ दी हुई है कि आपने किस तरह वॉश बेसिन को स्प्रे करना है या अपने हैंडल्स को क्लीन करना है, या हाउ कैन यू just wash your machines or your space and get rid of and do the basic cleaning. So the second step in infectious disease prevention management system is prevention itself. कैसे हम इनको रोक सकते हैं. रोकने की स्ट्रैटेजी अलग होती है और फैलने के बाद उससे फाइट करने की स्ट्रैटेजी अलग होती है. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने कैसे उसको रोकना है, प्रिवेंट करना है. So first thing is social distancing to avoid contact. दूर रहें, हिफाजत से रहें. Personal hygiene and use of personal protective equipment. आप अपने वर्कर्स को दें और आप इसका खुद भी ख्याल रखें. And then you have to implementation of your cleaning program, which we just discussed. You have to be very strict in implementation and execution of that program. You have to strict access control all employees and external visitors. आपने एक्सटर्नल विजिटर्स आपकी फैक्ट्री में आ रहे हैं, आप अपने डिपार्टमेंट के लोगों से बात करें कौन से ऐसे लोग हैं जिनका आना बिल्कुल मैंडेटरी जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे इंटरेक्शन अवॉइड किया जा सकता है, उन पे फ़ोन पे या ईमेल्स के थ्रू बात हो सकती है. तो इसको आपने करना है. विजिटर्स को, ऐसे मिलने वालों को या ऐसे कोई फैक्ट्री आ रहा है, अवॉइड दीज एंड रिस्ट्रिक्ट दीज. ठीक है, एडजस्टमेंट एट कैंटीन. कैंटीन्स के ऊपर 1 घंटा होता है लंच ब्रेक और बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं लंच करने के लिए, तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं ऐसे कि आप इंटरवल्स में लंच ब्रेक करें. आधा घंटे, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, जितनी कैपेसिटी आपकी कैंटीन में, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द SOP, सोशल डिस्टेंसिंग लगाने के बाद, तो आप अपनी लंच ब्रेक को इंटरवल्स में डिवाइड कर दें, यूनिट वाइज या ऑपरेशन वाइज के. लाइन 1 के लोग चले जाएं, उनका ऑपरेशन हो गया, यूनिट 1 के लोग चले जाएं. ठीक है, दिस विल अवॉइड द लार्ज गैदरिंग, और लोग करीब करीब भी नहीं बैठेंगे. ठीक है, और लोगों को एजुकेट करेंगे कम वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कैसे लंच करना है और कैसे जो है वो एरिया फ्री करके उन्होंने निकलना है, और किस तरह से अपने एरिया को क्लीन भी रखना है. ऐसे नहीं खा के उठे और सब गंद फैला दें फिर, और उसके बाद जब दूसरे हैं तो उनको ऑलरेडी वो गंदी जगह मिले. ठीक है, आपके स्मोकिंग रूम्स हैं वो ओपन एयर में होने चाहिए.
If you cannot avoid them, you need to provide them open space. You have to limit your meetings, conduct in open areas where necessary. You have to do identification, isolation and reporting of COVID cases. ठीक है, लोगों को इस बात पे इंकरेज करें कि अगर किसी को सिम्टम आ रहे हैं या उसे लगता है वो कोविड पॉजिटिव है तो वो वर्क प्लेस पे ना आए, उसको जॉब सिक्योरिटी दें कि उसकी जॉब कहीं नहीं जाएगी, लेकिन उसके अपने लिए और बाकी सब लोगों की हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि वो आइसोलेट करे और घर पे रहे और वर्क प्लेस पे ना आए. You need to make sure that your heating, ventilation and air conditioning system and controls ये इनके कंट्रोल्स ठीक हैं, ये सही हैं, इनकी वर्किंग प्रॉपर है. यू हैव टू मेक ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट्स. अगर किसी को ड्यूरिंग वर्क आवर कोविड हो जाता है तो कौन सी वैन यूज़ होगी, कौन सा गार्ड जाएगा, कौन लोग होंगे आपके कोविड रिस्पांस टीम में जो उसके साथ जाएंगे. ऐसे नहीं कि आप उसे फैक्ट्री से निकाल के बाहर, या उसके पास अपनी कोई कन्वेंस है, या अगर नहीं है तो आप क्या प्रोवाइड कर सकते हैं. और ये इसलिए नहीं, ये उसके लिए भी ज़रूरी है और ये आपके बाकी वर्कर की हेल्थ के लिए और आपकी हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है. क्योंकि अगर वो बंदा फैक्ट्री में बैठा रह गया या आपने प्रॉपर उसको जो है वो उसके घर ना पहुंचाया तो इट कैन बी डेंजरस और इट कैन रिजल्ट इन स्प्रेड ऑफ द वायरस. ठीक है, तो जब आप प्लान बनाएं तो प्लीज़ इसको भी जहन में रखें. यू डोंट नीड टू एलोकेट स्पेशल रिसोर्सेज कि आपने एक वैन बस ला के खड़ी कर दी है जिसमें आपने कोविड के पेशेंट्स से जाने हैं, बट आप आइडेंटिफाई कर दें कि इनकेस ऐसा कुछ होता है तो ये गाड़ी, ये लोग, ये गार्ड, जो भी अगर बंदे के पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो उसको सेफली मेडिकल प्लेस पे या उसे घर पहुंचाएंगे. मेजर्स फॉर टॉयलेट एंड फूड प्रिपरेशन एरियाज, यू नीड टू पुट मेजर्स कि आप टॉयलेट को कैसे मतलब कैसे कंट्रोल करेंगे वहाँ पे जर्म्स को. ठीक है, और आप फूड एरियाज को कैसे कवर करेंगे, आप एलिवेटर्स के अंदर किस तरह से डिसइंफेक्शन करेंगे और वहाँ पे आपने कैसे मेजर लेने हैं. और ये हम डिस्कस करेंगे आगे भी, और लेकिन ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो आपने जिन पे गौर करना है. ठीक है, एंड देन यू हैव टू टेक मेजर्स फॉर डॉर्मेटरीज एंड चाइल्ड केयर एरियाज. अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर जो है वो डे केयर सेंटर है तो उसके लिए आपका तरीक़ाकार बिल्कुल अलग होगा कि आपने उनको टेम्परेरी बंद करना है, या वो वर्कर्स जिनके बच्चे हैं उनको आपने टेम्परेरी ले ऑफ करना है, या वो घर से काम करने की आपने उन्हें परमिशन देनी है. तो यू हैव टू थिंक ऑन दोज लाइन्स. या आपने उनके जॉब नेचर चेंज करना है कि वो किसी ऐसी जगह से, ताकि उनकी जॉब नेचर चेंज हो और वो अपने घर से काम कर सके. सो प्लीज़ डू थिंक अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स. एंड देन यू हैव टू इंक्रीज द वेंटिलेशन रेट. बहुत सारी फैक्ट्रीज मैंने विजिट की हैं. Some of them are really good. They have very good sunlight access. They have very good ventilation. और इतनी अच्छी हवा आ रही होती है कि sometimes when you walk into the factories you don't smell chemical. और वहाँ पे आपको हब्स नहीं होता, वहाँ पे बाहर की हवा बड़ी अच्छी क्रॉस हो रही होती है और आप खाली एयर कंडीशनिंग पे और पंखे पे डिपेंडेंट नहीं होते. सो अगर ऐसा नहीं है, सो यू नीड टू बिल्ड वेंटिलेशन. यू हैव टू बिल्ड विंडोज ऑन योर वॉल्स. दीवारें हर जगह आपकी फैक्ट्री में मौजूद है, उनके ऊपर से आपने खिड़कियाँ निकालनी है, वेंटिलेशन सिस्टम डालना है कैसे बाहर की हवा साफ अंदर आए और अंदर की बाहर जाए. और इससे भी यू कैन प्रिवेंट लॉट ऑफ स्प्रेड ऑफ जर्म्स. ठीक है, और ये एक फ्यू एग्जांपल्स हम लोगों ने दिए कि वेंटिलेशन चेंज, मतलब वेंटिलेशन होने की वजह से क्या बेनिफिट हो सकते हैं, कैसे एयर सर्कुलेशन हमें हेल्प कर सकती है, यूवी लैम्प कैसे हो सकते हैं. The next is some examples are for social distancing. बहुत frequent हो गया है कि हमारे यहाँ लोगों ने markings कर दी हैं. So you can use a red medical tape and you can clearly put across, especially at your इस तरह के लिफ्ट्स के अंदर, या अगर आपके पास ये सीट्स हैं, या अगर आपने अपनी सोइंग लाइन ऐसे डिज़ाइन की है कि अब हर मशीन पे एक बंदा नहीं बैठ रहा और ऑर्डर्स भी कम है और कैपेसिटी भी ओपन है, तो मे बी यू कैन आप एक मशीन स्किप करें और अगली मशीन के ऊपर अपने वर्कर को बिठाएं ताकि उससे डिस्टेंस क्रिएट हो अगर आप बहुत अच्छी वेंटिलेशन नहीं कर पाते. सो यू कैन डू दीज थिंग्स एंड यू हैव टू पुट रेड मार्क, क्योंकि ये कहने से ज़्यादा लोगों को लिखा हुआ नज़र आता है या एक निशान बना हुआ नज़र आता है कि यहाँ नहीं बैठना. एंड दिस विल हेल्प यू इन योर ऑडिट एज वेल. जिस तरह से ये वॉश बेसिन के ऊपर हमने टॉयलेट्स की बात की, तो आप डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए टेप लगा दें ताकि लोग आपस में एक साथ खड़े नहीं. ठीक है, अगर कोई बैठने की जगह है तो उन पे टेप लगा दें. कैफेटेरियाज में बराबर बराबर कुर्सी पे बैठने पे एक पे टेप लगा दें और एक को बैठने के लिए रख दें.
So these are again some examples of social distancing. किस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेल्टर्स लगाए हुए हैं, कुछ लोगों ने जो है वो सीट्स एम्प्टी रखी हैं, ठीक है, कुछ लोगों ने सीट्स ही ज़्यादा, आप ये अगर आप जो है आपको लगता है कि आपके वर्कर जो है वो क्रॉस का साइन देख के उसको जो है वो नहीं फॉलो करेंगे तो आप वहाँ से कुर्सियाँ ही हटा सकते हैं, और आप सिर्फ उतनी ही कुर्सियाँ रखें जितने लोग आप समझते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लंच कर सकते हैं या फॉर द मैटर कॉन्फ्रेंस रूम में या मीटिंग रूम में बैठ सकते हैं। थोड़ा सा अपनी मतलब वर्कर्स की मेंटालिटी और माइंडसेट को भी अंडरस्टैंड करें ये और फाइंड सम क्रिएटिव वेज. So up till now, is there any question? I'm looking at the chat box and I'm reading questions. So let me just read the question. Give me a minute. So मैं देख रही हूँ काफ़ी सारे questions लोगों के आए हैं and Mr. Emmer is helping them to answer. And great. So I'll continue with the topic. Right? How can we disinfect HVAC system? There's a question, and the other one is, can you please advise about any control for such risk? Okay, so we'll take these questions. I'm moving on to our next topic, right? Because I just got a message from Mr. Emma that he will going to answer these questions, and at the end we'll also look into it. Okay. So step 3. अभी तक हमने वायर का W और I डिस्कस किया है, अब आ रहे हैं हम R पे. So what is R? R is basically the emergency response or response to emergency. आपने सारे methods बना लिए, SOP implement किए, सारे preventive measures ले लिए, but unfortunately कोई कहीं गया, बाहर से आया, हवा ऐसी चली और लोगों को कोविड हो गया. अब जब हो गया और एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई डिस्पाइट ऑल दिस प्रिवेंटिव मेजर्स, अब अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसको आपने कैसे डील करना है. आपके पास डिफाइंड प्रोसीजर्स या गाइडलाइंस होनी चाहिए कि अगर इमरजेंसी आती है तो आप क्या करेंगे. सो लेट्स एक्सप्लोर व्हाट इज इन दिस सेक्शन. What if one of my I'm discussing few situations, ऐसी सिचुएशन जिनके अंदर आपको पता होना चाहिए कि अब आपने क्या करना है. आपके डोर के ऊपर आपने टेम्परेचर चेक लिया गार्ड ने और किसी का बॉडी टेम्परेचर 37.3 सेल्सियस से ज़्यादा आ गया, तो आप क्या करेंगे? उस एम्प्लॉय को अंदर आने देंगे या उसको रोकेंगे, और लेकिन रोकने के बाद भी आप क्या करेंगे? So there are few scenarios which we have discussed. You can send the worker to the quarantine area for further testing and observation verification. If you don't have any quarantine area in your facility, you can make one. ठीक है, आपको कोई बहुत बड़े कमरों की ज़रूरत नहीं है, एक सेपरेट एरिया की ज़रूरत है जहाँ आप उन लोगों को बिठा सकते हैं. And you can further, if you have the facility of testing, or you can send them to testing labs, or you can send them to their home for self-isolation and quarantine. Then disinfect the worker's workstation. फिर आप second step, वो worker किस department में कहाँ काम करता है, आप जाएं उसके workstation को disinfect करें, मशीन टूल्स उसके नियर बाय एरिया को करें, और जो उसके वर्कर उसके आसपास थे उनको भी आप जो है वो अटेंशन दें और देखें कि उनके पास ये सिम्टम्स हैं या नहीं है. Supervisor should observe his her coworker. If anyone has any symptom of COVID, should report up immediately. Again, जैसे मैंने पहले कहा था कि लाइन सुपरवाइजर है वो भी लोगों पे नज़र रखे. अगर कोई अपने सिम्टम्स छुपा रहा है या उसको लगता है उसे खांसी नज़ला हो रहा है या वो बता नहीं रहा, तो सुपरवाइजर कैन हाईलाइट एंड सेंड दैट पर्सन टू क्वारंटाइन और सेल्फ आइसोलेशन और बैक टू देयर होम और टू अ टेस्टिंग लैब. ठीक है. व्हाट इफ वन ऑफ माय वर्कर्स सिम्टम्स कंटिन्यू? अगर कांस्टेंट, अगर आपको लग रहा है कि किसी वर्कर के सिम्टम्स कंटिन्यू हो रहे हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए? अगेन इट्स इमरजेंसी कंडीशन. Have them stay at the quarantine or observation room.
अगर आपको लग रहा है कि उसे सिवियर सिम्टम नहीं है मगर सिम्टम है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो रह रहे हैं, ख़त्म नहीं हुए, तो आप उसको ऑब्जर्वेशन रूम में रखें। ठीक है, आप अपने हॉस्पिटल को नोटिफाई कर दें, देयर हेल्पलाइंस एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट अवेलेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आप उनको इन्फॉर्म करें और उस वर्कर को सेफली आप वहाँ पहुँचाएं अगर उसे घर पे सेल्फ आइसोलेशन की फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, कंफर्म द स्कोप ऑफ क्लोज कॉन्टैक्ट्स, मेक श्योर दैट वर्कर्स के साथ किसी एक बंदे का इमरजेंसी कांटेक्ट वो अपनी सुपरवाइजर को दे या अपनी डायरेक्टरी मेंटेन करे, जस्ट इन केस अगर वर्कर का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, ये आप अपनी मैनेजमेंट के लिए भी रख सकते हैं और ये आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आपके वर्कर्स के लिए भी रख सकते हैं, ये किसी पे भी अप्लाई हो सकता है। तो आई थिंक इट विल बी गुड कि अगर आप इस तरह से किसी का क्लोज कॉन्टैक्ट रखें और इमरजेंसी की सूरत में आप अगर उस बंदे की कैफियत अच्छी नहीं है तो आप उसके किसी रिलेटिव को या उसके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, then you have to disinfect production floor, canteen and other areas. This has been to may consider pausing production until further notice. और इसको बिल्कुल लाइट नहीं ले, वो बंदा जहाँ भी बैठता था या उसके सिम्टम्स जहाँ भी थे उस एरिया को आपने क्लीन डिसइंफेक्ट करना है, बीट प्रोडक्शन फ्लोर। ठीक है, आपने इसको ऐसे नहीं देखना कि वो बस जाके आप उसके वर्क स्टेशन क्लीन कर दें। You have to clean the whole area where he was exposed to or the area was exposed to him. ठीक, the next scenario would be how to transfer a worker safely if he or she has symptoms and the symptoms continue. So you can ask respective healthcare or hospital centers for assistance. Emergency आप ambulances मंगवा सकते हैं. If professional medical transfer assistance is not available, a car shall be arranged to send the worker to hospital or home. The driver and their helpers shall wear N95 mask, gloves, isolation gown, जो हमने हमारे CCP प्रोग्राम में डिस्कस किया था। ठीक है, ताकि जो लोग उस इन्फेक्टेड वर्कर को लेके जा रहे हैं उनको खुद वायरस ना अटैक करे। ठीक है, द कार एंड प्रोटेक्टिव शील्ड और गॉगल शैल बी डिसइंफेक्टेड कंप्लीटली आफ्टर द ड्रॉप ऑफ द वर्कर। ठीक है, or isolation gowns, gloves, N95, they should be treated as a medical waste. While waste management, you need to एक certain SOP होता है medical waste को dispose करने के लिए, तो आप उसका ख्याल रखें और उसको उसी तरह से dispose of करें। ठीक, there are some examples of temperature monitoring control. हमारे यहाँ बहुत कॉमन ये इंफ्रारेड डिवाइस है जो लोग यूज़ कर रहे हैं, but there are other screens and special sensors जो लोगों के टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं एंट्रेंस पे, एग्जिट पे और हाई रिस्क एरियाज पे। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू स्टेप 4 and I think for our society step 4 is the most important after the implementation or creation of a system, क्योंकि जब तक ये हर सिस्टम डिपेंडेंट होता है लोगों पे, अगर लोग एजुकेट नहीं होंगे, फॉलो नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं होगी। So step 4. So we are at E of the WIRED framework. So it's education and support. And what does it says and why it is important? The education steps consist of training and communication activities that factory management should follow to eliminate concern, panic, and misperception among the workers to ensure clean understanding of their life and workplace safety. बैनर्स लगाना बहुत अच्छा है, लेकिन खाली बैनर से काम नहीं चलेगा क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स इलिटरेट होते हैं और बहुत सारी ऐसी मैनेजमेंट भी होती है या ऐसे लोग भी होते हैं पढ़े लिखे भी जो इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ना चाहते। तो ज़्यादा अच्छा तरीका होगा कि आप उनके लिए ट्रेनिंग अरेंज करें और कॉन्स्टेंट कम्युनिकेट करें। लाउड स्पीकर पे चाहे आप दिन में एक दफ़ा अनाउंस करें या हर दिन में 2 दफ़ा करें या 2 दिन में 1 दफ़ा करें या हफ्ते में 1 दफ़ा करें, जितना ज़्यादा आप उनको ये मैसेज सुनाते रहेंगे उतना ज़्यादा उनके ब्रेन में ये मैसेज एडहेर करेगा, उतना ज़्यादा वो इसको फॉलो करेंगे। ये पूरी एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, इसके ऊपर के रिपीटेशन के थ्रू आप कैसे इंश्योर करते हैं कि आपका मैसेज कम्युनिकेट भी हो, लोगों से फॉलो करें और अंडरस्टैंड करें। तो एक पीरियोडिक वे में आपने लोगों को ट्रेन करना है, कम्युनिकेट करना है और एक मेथड, और लोग सुनना चाहे ना चाहे, जिस तरह से ये हमारे टेलीफोन के ऊपर जो हम किसी को कॉल करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक मैसेज ज़रूर आता है, तो उस मैसेज के पीछे भी जो साइंस है वो यही है कि जो लोग जितना सुनेंगे और तो वो उतना ज़्यादा अवेयर होंगे और उतना ज़्यादा उनके जो अनकॉन्शियस ब्रेन है वो उसके ऊपर एक्शन लेगा। तो ये प्रूवन मेथड्स हैं, इनके ऊपर टेस्टेड हैं
बेहतरीन इसके रिजल्ट्स हैं। तो आप प्लीज़ इनको अप्लाई करें। एंड I've seen lot of factories are using loudspeakers and they are constantly making announcements टाइम टू टाइम अपने वर्कर्स को एजुकेट करने के लिए कि अपने आप को साफ रख लें या हाथ धो लें या खाना ना फेंकें या सफाई का ख्याल रखें। जो भी आप अपनी अपने बिजनेस के हवाले से, अपनी फैक्ट्री की, अपनी स्पेस के हवाले से आप समझते हैं जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, आप उसे इस मेथड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, री कर सकते हैं। री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद measure and protocols should be clearly explained to address concern and ensure that all involved comply with infectious disease management rules. एक चीज जो हम लोगों ने फैक्ट्रीज में देखी ड्यूरिंग दीज डेज वो ये कि कंटेंट अच्छा था, तस्वीरें अच्छी थी, उन्होंने कॉपी पेस्ट की, बैनर्स बनाए और फैक्ट्रीज पे लगा दिए। ठीक है। लोगों को समझ में नहीं आए, लोगों ने उनको पढ़ना नहीं चाहा, इतने अल्फाज लिखे हुए थे वो समझ नहीं पाए, ऐसी तस्वीरें लिखी हुई थी जो जिनसे वो रिलेट नहीं कर पाए। ठीक है। तो जब भी आप एक्सप्लेन करें लोगों को तो कोशिश करें कि ऐसी ऐसी लैंग्वेज हो आपकी जिसमें उनको समझ में आए, वो रिलेट कर सकें, उन्हें लगे कि उनके बारे में बात हो रही है, तो वो आपके मैसेज को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, उसे रिटेन करेंगे। ठीक है। और प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन हो। प्रोएक्टिव से मुराद प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन यही है जो हमने पॉइंट 1 में डिस्कस की है कि वक्त मतलब वायरस आके दोबारा हिट करे उससे पहले अपनी कम्युनिकेशन को स्टॉप ना करें और उसे कंटिन्यू रखें। और जो सबसे इफेक्टिव वे होता है कम्युनिकेशन का वो इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है अमंगस्ट वर्कर। ठीक है। एंड कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ अनफोल्डेड रूमर्स। आप देखिए आपके फ्लोर पे कौन से ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स के तौर पे आप यूज कर सकते हैं, आप उनको अपने रिस्पांस टीम में शामिल करें। वो लोग जिनके बहुत सारे वर्कर्स बात सुनते हैं ज़्यादा, ऐसे लोगों को आप एजुकेट करें, अपने साथ शामिल करें ताकि बाकी लोगों को वो कंट्रोल कर सकें या उनको अपना मैसेज कन्वे कर सकें। ठीक है। वी ऑल नीड टू वर्क एज अ टीम। ये खाली जो आपको मैसेज एक देना होगा ना वो ये नहीं है कि खाली जो रिस्पांस टीम है या जो इन्फेक्शियस मैनेजमेंट टीम है वो ही या क्लीनिंग टीम है वो ही इसकी रिस्पॉन्सिबल है। जब तक लोग टीम्स में काम नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे और वन टीम बन के काम नहीं करेंगे तो आप इससे फाइट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत आपने ख्याल रखें और लोगों को उस तरह से मोटिवेट करें, एजुकेट करें। ठीक है। एंड साइक्लिक कम्युनिकेशन एज बी से बार 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 सिचुएशन के हिसाब से मैसेज दें। ठीक है। और इफ यू कैन ऐड एन इंसेंटिव, यू कैन हाईलाइट बेस्ट एम्प्लॉय और बेस्ट वर्कर जो पूरे हफ्ते में जिसने एसओपी फॉलो की है। ठीक है। सिर्फ उनका नाम ही इस तरह से आप लेंगे तो वो भी लोगों के लिए एक अच्छी एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे, लोग देखेंगे अच्छा वो ऐसा क्या कर रहा है और वो भी जाके और वर्कर्स को बोलेगा अच्छा मैंने ऐसा किया। सो इससे ना मोटिवेशन पैदा होगी। जो लोगों के अंदर बेजारी वाली कैफियत है या ये क्या हमारे ऊपर पहले से कम सोशल कंप्लाइंस कितने जो है वो हमारे ऊपर प्रोसीजर्स थे, अब ये कोविड और आ गया है तो इस ये एक ना एक एक्सेप्टेंस आ जाएगी उनके अंदर अगर वो अच्छे से मोटिवेट हो। Okay, then there are some important points in education and communication. Visibility identification of COVID response team personnel. लोगों को क्लियरली पता हो कि आपकी टीम में या आपने किन लोगों को कोविड रिस्पांस टीम में रखा है, उनके नाम क्या है, नंबर क्या है और उनको कैसे अप्रोच किया जा सकता है। ठीक है। ये कोई यू डोंट हैव टू हायर एनीवन स्पेशल फॉर दिस। आप अपने ही हर यूनिट में से टीम में से लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस यूनिट के अंदर ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है, ताकि इससे आपकी मैनेजमेंट आसान होगी। आपको 1500 लोगों को एक बंदा नहीं डील कर रहा होगा, बट देयर विल बी स्मॉल यूनिट्स और लोगों की आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है और वो लोगों तक पहुंचे कि अच्छा ये बंदा इस चीज़ को देख रहा है। एडहेरेंस टू लोकल इंटरनेशनल बॉडीज कोविड प्रोटेक्शन गाइडलाइंस। जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं उनको ज़रूर एडहेर करें। पॉइंट ऑफ एंट्री स्क्रीनिंग इज अ मस्ट, कम्युनिकेटिंग इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन थ्रू साइनेज। उर्दू में साइनेज लगाएं वर्कर्स के लिए और उनको पर्सनल हाइजीन की इम्पोर्टेंस दें, बिकॉज उनको बताएं कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम मी। इफ आई विल प्रैक्टिस देन ओनली आई कैन प्रोटेक्ट माई वर्क प्लेस। ठीक है। तो ये बताएं उन्हें। सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स की मार्किंग करें, क्लियर मार्किंग हो, रेड टेप से हो, विजिबल हो। ठीक है। उन लोगों को नजर आए और आपके मॉनिटर करने के लिए भी आसान हो, उनको फॉलो करने के लिए भी आसान हो। Paced visitor screening rules on entrance. Conduct regular training on cleaning plans designed to prevent outbreak. Train workers and management on proper use of PPE. PPEs are basically personal protective equipments. कैसे मास्क लगाना है, कैसे टिश्यू करना है, कहाँ यूज करना है, कहाँ फेंकना है,
ग्लव्स कैसे पहनने हैं, प्रोटेक्टिव सूट कैसे पहनना है, लोगों को इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दें, ठीक है, और बार बार दें, ताकि जब अगर कोई इमरजेंसी आए तो वो ये खड़े हुए फिगर आउट ना कर रहे हो कि अब मैं इस मास्क को मतलब ऐसे लगाऊं या उल्टा लगाऊं, या मैं जूतों के साथ ही कपड़े पहनूं, या मैं पहले जूते उतार दूं फिर मैं ये प्रोटेक्टिव गाउन पहनूं। तो लीव नथिंग फॉर चांस, आप जो है वो हर चीज़ की ट्रेनिंग प्रॉपर दें लोगों को, दें और बोर्ड्स पे लगा दें, वीडियो चला दें, वट एवर यू फील, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ HVAC सिस्टम ऑपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी हीटिंग, वेंटिलेटिंग और एयर कंडीशन कैसे चल रहे हैं, क्या चल रहा है, स्पेशली आपके बीविंग मिल्स में या जहाँ पे जो है वो इन्वायरमेंट, वर्किंग इन्वायरमेंट थोड़ी सी टफ है उधर। The next is clear identification and marking of indoor and outdoor areas. Set people limits to enter particular area to avoid crowding, जो हमने अभी डिस्कस किया था. Worker who are sick and or lost someone they love during the pandemic can obtain psychological support. बहुत सारी फैक्ट्रीज के अंदर इस तरह की साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं होती है, बट यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और यू कैन क्रिएट वन, और ऐसे लोग जो मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, वो जो वर्कर्स होते हैं वो उनके पास जा सकते हैं और बता सकते हैं कि if they have lost loved one in this, and maybe you can use them, और आप उनको अपनी टीम का भी पार्ट बना सकते हैं, because they have seen it, they are going through this loss, ठीक है। फिर फैक्ट्री इंश्योर दैट ऑल कॉन्ट्रैक्टर्स आर ट्रेनिंग देयर एम्प्लॉइज ऑन सेफ्टी प्रोसीजर आउटलाइन लोकल रेगुलेशन। अगर आपके सबकॉन हो रहा है, आउटसोर्सिंग, आउट कॉन्ट्रैक्टिंग हो रही है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो रही है, तो मेक श्योर कि आपके सब कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर भी यही सेम रूल्स अप्लाई हो रहे हो, क्योंकि माल वहीं से बन के आएगा, लोग भी वहाँ से आपके पास आएंगे, और जो भी आपने गाइडलाइंस बनाई है यू कैन शेयर विद देम एंड यू कैन इंश्योर कि वो भी अप्लाई करें। एग्जिस्टिंग हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी वर्कप्लेस हेल्थ यूनिट्स आर एम्पावर्ड। जो लोग आपकी ये हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी के अंदर हैं या आपकी कोविड रिस्पांस टीम के अंदर है, आप उनको एम्पावर करें। एम्पावर से मुराद वो उनको पता हो कि अगर इमरजेंसी आई तो मुझे क्या करना है, और वो डिसीजन ले सके, ना कि वो अपने किसी बड़े मैनेजर के पास जाएं भागते हुए, और वो मैनेजर किसी मीटिंग में बैठा हो, वो मीटिंग किसी सेठ साहब से हो रही हो, और उस बंदे को, और जो इमरजेंसी की सिचुएशन आई हुई हो, वो उसकी सिवियरनेस बढ़ रही है, लेकिन जिन लोगों को डिसीजन लेना है उनको आपने एम्पावर नहीं किया हुआ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको एम्पावर करें, उनको डिसीजन लेने की अथॉरिटी करें, बाय हाउ, बाय डिफाइनिंग ऑफ योर मेथड, कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उन्होंने ये करके वर्क प्लेस को सेव करना, और अपने आप को सेव करना, और बाकी लोगों को सेव करना। वर्कर रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियंस आर इंक्लूडेड इन इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। उनसे भी आप फीडबैक लेते रहें अपने वर्कर्स के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर फैक्ट्रीज कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉइज पे काम कर रही होती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन यूनियंस को और कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने साथ मिलाएं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंड अग्रीमेंट्स आर मेड विद सर्टिफाइड बायोकंटामिनेशन क्लीनअप फर्म्स। देयर आर थर्ड पार्टीज अवेलेबल दीस डेज whom you can join hand, ठीक है। अगर आपको लग रहा है बड़ा मुश्किल है, नहीं हो रहा, तो आप हायर अ थर्ड पार्टी एंड लेट देम डू द वर्क फॉर यू, ठीक है। लेट देम डेवलप ये क्लीनिंग, और क्लीनिंग अप कैसे करनी है, क्या करना है, तो आप उनको हायर करें, एंड आई एम श्योर इट विल बी इफेक्टिव, ठीक। सो देयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कोविड साइनेज फॉर फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज यूज भी कर रही हैं, जो आईएलओ ने बनाई हैं, और इस पे उर्दू में भी इंग्लिश में भी साइनेज की फॉर्म में लिखी हुई है, बट यू कैन नॉट, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, आप खुद बनाएं अपने लिए, ठीक है। और जो है आप डिफाइन करें अपनी नीड को कि आपको कैसे देखना है, लेकिन साइनेज हमेशा याद रखें, बोलने से ज़्यादा पिक्चर स्पीक्स थाउजेंड वर्ड्स, जितना ज़्यादा आप तस्वीरें लगाएंगे, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, उनको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। और चारों स्टेप्स हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं वायर फ्रेमवर्क के, और लेट मी सी इफ वी हैव एनी क्वेश्चन सो फार। ओके, so Ikra has asked a question that what kind of precaution should we take in university lab as university is crowded, so let me see if it has been answered yet. सो इकरा, यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी गाइडलाइंस बिल्कुल वही होंगी जो एक फैक्ट्री के लिए होती है, क्योंकि लैब्स में यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, और जो भी एरिया में लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पे आप लोगों ने इसी तरह की यही गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी।
ओके Okay, so there are a lot of questions coming in chat as well, other than the Q&As. Can you please tell the periodic frequency of the activities? ठीक है, और आई एम श्योर दिस हैज़ बीन आंसर्ड, लेकिन मैं अगर इसका आंसर दूं तो ये हम नहीं डिफाइन करेंगे, यू हैव टू डिफाइन इट योरसेल्फ। आप अपने वर्कर्स की नीड देखें, आप अपनी एरिया देखें क्या है आपकी फैक्ट्री का, और लोगों की हैबिट्स भी ज़रूर देखें। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके लोग हैबिचुअली क्लीन है या उन मतलब तबीयत उनकी तबीयत में ही गंदगी है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को साफ नहीं रखना चाहते या जो अपने इन्वायरमेंट को साफ नहीं रखना चाहते। तो थोड़ा सा ना आप अपने वर्कर्स की हैबिट भी देखें और फिर उसके हिसाब से डिफाइन करें। लेकिन ये कि इसमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, जैसे आज एक क्लीनिंग हुई है तो 2 महीने बाद दूसरी होगी। फ्रीक्वेंसीज की ज़्यादा रखें, एटलीस्ट हफ्ते में एक दफ़ा तो इसको होना चाहिए। ठीक है, और सिवेरिटी इन टर्म्स के केसेस जो है वो रिपोर्ट कम हो रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ सिवियरिटी ऑफ वायरस डिक्रीज हो गई है, तो आई थिंक वी हैव जस्ट कवर्ड इट इन आवर स्लाइड कि स्टिल वी फॉल अंडर कैटेगरी 5, और कैटेगरी 5 में अभी भी हमारा जो फेटेलिटी रेट है वो 2 से अबव है। सो आई कैन नॉट से दैट जो इसकी सिवियरिटी है वो रिड्यूस हो गई है। आई थिंक इट्स वेरी मच देयर, इट्स जस्ट दैट नंबर ऑफ केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर यही पैटर्न रहा अगले 3 महीने तक या 4 महीने तक, तो हमारी तब हम कह सकते हैं कि यस सिवियरिटी जो है वो कम हो गई है, क्योंकि तब हमारी फेटेलिटी रेटिंग भी एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड या नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड इन्फेक्टेड वो भी लेस। बट आज की डेट में ये कहना सेफ नहीं है कि सिवियरिटी कम हो गई है। आज की डेट में सिर्फ नंबर ऑफ केसेस कम, मतलब कम लोगों को कोविड पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, डिस्पाइट द नंबर ऑफ टेस्ट। ओके, सो कंटिन्यूइंग विद द प्रेजेंटेशन, तो अब जितना भी हमने आज पढ़ा है या सीखा है या गाइडलाइंस मैंने आपसे शेयर की हैं, और उसको मैंने एक वायर फ्रेमवर्क का नाम दिया है WIRE, ताकि आप उसको इसलिए ताकि आपको वो अच्छे से मेंटली रिटेन हो, और आपको दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स। Who is your enemy, your infectious disease management system, your response to the emergency, and the education. These are all wired together. So now, अब इस wire framework के अंदर, now it's up to you कि इस ट्रेनिंग में हमने गाइडलाइंस दे दी हैं आपको, और आपको पॉसिबल आउटकम्स बताते हैं। गाइडलाइंस क्या थी हमारे पास? वो वायर्स थे, वो एनिमी थी, इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट सिस्टम्स थे, जिनको आपने सही तरीके से फ्रेम करना है इन ऑर्डर टू गेट द पॉजिटिव आउटकम्स, व्हिच यू कैन सी इज वर्क प्लेस वेलबींग, जो हमने अपनी ट्रेनिंग के शुरू में डिस्कस की। ठीक है, लेकिन अगर आप इनको सही से इम्प्लीमेंट नहीं करते, आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं, आप समझते हैं, आप अज्यूम करते हैं कि वायरस चला गया है और सब लोग जो वायरस वायरस कर रहे हैं वो लोग ठीक नहीं कर रहे, या हम आज़ाद हैं, या हम बिल्कुल वायरस फ्री हो चुके हैं, और इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप जो है वो, या आपने कोई सिस्टम या मैकेनिज्म नहीं बनाया, आप अभी भी एडहॉक बेसिस पे चल रहे हैं, आएगा तो कर लेंगे, नहीं आया तो नहीं किया। सो लेट मी टेल यू कि यू विल नॉट, आउटकम तो फिर भी आएगा, or maybe that's not a favorable outcome, right? These wires, you will be entangled yourself in these wires, and the result will be chaos, panic, uncertainty, and eventually death. क्योंकि जब आप वायरस को नहीं रोकेंगे, आप एक सिस्टम नहीं बनाएंगे, अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करेंगे, चाहे घर में या चाहे वर्क प्लेस पे, यू विल नॉट गेट एनी गुड आउटकम। ठीक है, आपको आउटकम जरूर मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा मे बी जो आप चाहते ना हो कि आपको मिले। सो the choice is yours. इम्प्लीमेंट करना है, सिस्टम बनाना है, या अभी भी बस हिट एंड ट्रायल की बेस पे चलना है कि जब होगा तब देख लेंगे, और
It's up to you. So the enemy is COVID, or the enemy is our behavior or ourselves or us. It's up to us to decide. Okay? So guys, let's start. What are you waiting for? Start wiring your workplace now. Start creating SOPs. Start using these guidelines, and at least do something. You don't have to be perfect, okay, to create this. At least do something. बहुत सारा नहीं अप्लाई कर सकते तो थोड़ा करें. At least start, take a step, take an initiative. आपको किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए इन मेथड्स को बनाने के लिए. If you're responsible, you are head of your unit और कोई आपके लिए नहीं कर रहा, and you're a manager and few people are reporting under you, you can even start. You can still make an SOP. You can start educating people. So please take action and start. So I'm during the training there were a lot of questions, but अगर अभी भी कोई questions है तो please drop it in the drop zone. I'll be happy to answer. So I'm looking at the Q&A box right now, and there are no questions. I guess 34 question has been answered already. So I'll wait for one more minute if someone has any question. Okay, so looks like हर एक को टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और वो उसको रिलेट कर रहे हैं, और हमने पोल के भी रिजल्ट्स देखे हैं. Chandni, can you just re-show the results of the poll? How many people have find this? Okay, great. So जो मेरे पास results आए हैं poll के, so webinar was relevant to my needs. Is strongly agree. 42% believe that yes. 57% agree. Length of webinar was sufficient. Okay, agree. So those who have disagree, can they just write a comment के उन्हें ये लंबा लगा या उन्हें छोटा लगा? Okay. Or webinar met my expectations. Good. Overall management was good. Great. I'm closing this poll. So agar iske baad bhi, okay, we got one question from Salman, and what is the best way to dispose used PPEs? So there are procedure medical waste management. ठीक है, guidelines are available. तो आप उनको use कर सकते हैं in order to dispose these materials. देखिए ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हैं, इसीलिए इसमें इतनी सिंप्लीफाई करके और बहुत सारे वेबसाइट्स को, मटेरियल्स को पढ़ के, बहुत सारी फैक्ट्रीज के अंदर जो प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट हुई हैं फैक्ट्रीज में, हॉस्पिटल्स में, ठीक है, उनको देखकर जो है वो ये गाइडलाइंस बनाई गई हैं. तो येस, दे आर एप्लीकेबल. बट एज आई सेड, मैंने खाली कोविड को नहीं, मैंने हम लोगों को भी एनिमी किया है, क्योंकि हम लोग चेंज नहीं करना चाहते. तो अगर हम नहीं चेंज करना चाहते तो जो मैंने मेथडोलॉजी बताई है, एक सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं और लोगों को एडहर करें कि उसे फॉलो करना है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हो जाएंगी. पूरी फैक्ट्री में नहीं हो सकती तो छोटे से एरिया में करें. एटलीस्ट स्टार्ट, टेक सम इनिशिएटिव, डू इट. No, you won't get any certificate for this. And so yes, it would be great if this would have been arranged in the month of April. लेकिन अप्रैल तक हमारे पास इतना डेटा नहीं था, हम लोग सब लर्न कर रहे थे. So I think it's never too late. We are in a very good position. Our number of cases are declining, so it's the right time to take preventive measures. Great. अच्छा, other than that, if you still feel कि आपको आपके कोई questions हैं, या while applying these guidelines you need some assistance, you need some guidance, or you have question, please आप जो है वो you can contact me, or this is my email address. You can contact me via LinkedIn. You can those who cannot contact me, they can also reach out to Mr. Emmer for this training. और ये ट्रेनिंग मटेरियल आप सब लोगों को ईमेल होगा, ये लिंक्डइन पे भी अवेलेबल होगा.
So I think the recording would also be available, right? So you can still reach out to me, you can still contact us, and the help is there. You have to be courageous to ask for it. Okay? So thank you so much for your time. I'll just take one more minute to read if there are any questions, and then I'm going to end the session. So yes, so desired production capacity will be affected. If you have big areas like mills in Lahore, they have huge areas with them, they can spread it, ठीक है. और वो जो है वो एरिया बढ़ा सकते हैं अपनी मशीन्स का, या ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस के साथ भी वो अपनी नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ा सकते हैं, या उनके आपस में डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, या दे कैन यूज शिफ्ट. ठीक है, आप एक शिफ्ट की बजाय आप 3 शिफ्ट चलाएं और विद दीज एसओपीज चलाएं. ठीक है, आप अपनी वर्क फोर्स को ट्रेन करें. और सबसे आसान हल कराची के लिए तो मुझे ये लगता है, या मीन्स नॉट रिलेटेड टू एरिया, इज रिलेटेड टू एनी बिजनेस, इज go in shifts, train more workers and go in shifts so you can achieve your desired production capacity. ठीक है, उसके बाद जो है we have a question. What should be the frequency of hand sanitization? Well, I personally feel, it's my personal opinion, कि बहुत ज़्यादा hand sanitize नहीं करना चाहिए. Preference हाथ धोने को देनी चाहिए. लेकिन अगर washing units available नहीं है, then you can use hand sanitizer in a limited quantity, but not too much. ठीक है. Yes, you can reproduce the same training for your staff. आप इसको अपनी तरह से content को modify करें और अपने लोगों को train करें इसके ऊपर. ठीक है, you can do ये. This is free, available for everyone. You can use it, you can publish it, you can train your employees or your workers using this training. Is absolutely at your disposal. ठीक है, there aren't any certificates for this training. It's completely for the awareness, and the cost of production is matter much. We cannot meet the market soon. I think you have to analyze the risk and the cost. It's always the risk analysis, risk and cost. अगर आप जो है वो ये सोच रहे हैं कि ये सारी चीजें करने के बाद मेरी कॉस्ट ऊपर जाएगी, यस आपकी कॉस्ट ऊपर जाएगी, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. लेकिन कैन यू इमेजिन द कॉस्ट अगर आपके फैक्ट्री में वायरस स्प्रेड हो गया और आपका एक वर्कर भी फैक्ट्री में नहीं आ रहा. और अभी आप ये देखें कि दिस इज अगस्त, जो आपकी मार्केट्स हैं यूरोप और यूएस, उनके अंदर हॉलीडे सीजन्स की प्लानिंग और ऑर्डर प्लेसमेंट और प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई. सो कैन यू इमेजिन कि अगले 3 महीने के अंदर आपके किसी एम्प्लॉय में कोविड आए, और इतने पीक सीजन पे जो आपका मेन सीजन है सेल्स का, उसमें आप रिस्क आप जो है वो एक इमरजेंसी सिचुएशन में जाएं. तो अगर आप ये रिस्क एनालाइज कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी कॉस्ट क्या होगी. आप कैंसिलेशन की कॉस्ट ज्यादा आपको लगेगी, या आपको ये एसओपीज इंप्लीमेंट करने की कॉस्ट लगेगी. So these are some critical questions that you have to find answer by yourself and analyze, right? उसके बाद है question. Okay, so I think most of the questions have been answered. If you still have questions, you can always write me. My links, you can approach me by email and LinkedIn. And thank you so much for your participation, for listening, and for lots of appreciation. It was a really nice training, and I really feel happy that people still have the will to correct things, and they have the awareness, and they actually have the idea of severity of this problem. So thank you so much. It was very nice to be in touch with you. And thank you so much for this huge participation. We have already reached our maximum participant list. So thank you so much. So I'm closing my video, and I'm stop sharing my screen. So either Mr. Ever or Chandni can take over from here. Thank you so much. Amar sir, do you need to say anything, or we should just end it, or doing the close up? I just want to answer one question जो AGI एनएम ने कहा था और कमेंट किया था उन्होंने कि it was too late. I think it's not too late because COVID is here to stay and it's new normal that we are facing in the future, right? So हमें ये जो SOPs हम लोगों ने बनानी है, we need to make it sure कि
ये SOPs हम लोग खाली एक टाइम पीरियड के लिए हम अप्लाई ना करें. We have to make these SOPs part of our lifestyle as well in the factories too. हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है उनका पार्ट बनाना पड़ेगा इन SOPs को हमें. And besides that, I would like to thank Ms. Farheen for such a wonderful session, or Smita too as well for organizing everything for us. I think we can end the session, and I think after ending the session, we can have internal discussion as well for a while. Okay. Thank you very much, everyone, for joining us for today's webinar. I would like to close up and wrap up the program now. Thank you so much, everyone, for coming and joining us once again. अगर इसके हवाले से फर्दर कोई भी आपको क्वेरी है रिगार्डिंग SMEs और कोई भी इशू आ रहा है आपको, तो आप हमारे फेसबुक पेज, हमारी हेल्पलाइन और हमारी ईमेल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. तमाम डिटेल्स आपको हमारे फेसबुक पेज जो कि समेडा कराची के नाम से है वहाँ पे मिल जाएगी. So here we are going to end. Thank you so much. Allah Hafiz, everyone. So Chandni, I'm going to stay here for a few minutes.